Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, सो यू विल लर्न दैट इन दिस वीडियो एंड you won't be repeating that ever in your life. All right. So without wasting time, let's start. Okay. So now let's have a look at the mistakes which we make the most. Here it's written rack and rack. Do you think the pronunciation of both the words is rack? No. See, so the first word which is written, it is pronounced as rack. Okay? Rek. Rek. You can also pronounce it like rek or rack. And the second word it's written WREAK. It's pronounced as reek. Alright. So rek and reek. Now, जैसे इनके pronunciation में difference है, same इनके meanings में भी difference है. Now let's have a look at the difference of the meanings. So, if for example I write a sentence, a plane was reduced to a smoldering reek, the plane was reduced to a smoldering rack. अब आपको ये कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर जो करेक्ट है वो कैसे करेक्ट है, ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक यू वोंट बी नोइंग कि इन दोनों के मतलब क्या है. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर यू द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स. सो यहाँ पे जो हमारा पहला वर्ड है रैक, ओके आई एम टेकिंग रीक फर्स्ट. सो रीक मीन्स कॉज. ठीक है, कॉज. कोई भी चीज, चाहे वो कॉज नुकसान का, लाइक किसी भी चीज का कॉज हार्मफुल हो या कैसा भी कॉज हो, बट रीक मीन्स कॉज. ठीक है. सो टू कॉज समथिंग बैड टू हैपन. ठीक है. सो रीक मीन्स कि किसी भी चीज को कि जो बुरी हैपनिंग का जो कॉज होता है, दैट इज रीक. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर, आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल. ओके, सो the heavy rain will wreak wreak damage on the roads. तो जो heavy rain है वो क्या करेगी, जो roads पे डैमेज कॉज करेगी. सो दैट इज वाई आप अगर इस वर्ड को cause से रिप्लेस करके भी पढ़ोगे, you'll find the same meaning of the sentence. There is no like the meaning of the sentence will not change at any cost. All right. So the heavy rain will wreak damage on the roads. Okay. So what is the meaning of wreak? Cause. If you just replace wreak with cause, the meaning will still remain same. So the heavy rain will cause damage on the roads. So I hope this one is clear. Now let's have a look at the meaning of wreck. ठीक है. So wreck, it means to destroy or ruin something. ठीक है. तो wreck का मतलब कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, दैट इज wreck. ठीक है. और रीक का मतलब था किसी भी बुरी चीज का जो कॉज है, दैट इज रीक. अब यहाँ इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार. So, the storm wrecked the old house. तो जो storm था उसने क्या करा, जो old house था उसको डैमेज कर दिया. So that is why हमारे यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया. अगर आप इस वाले wrecked को destroy से, damage से, इन वर्ड से रिप्लेस करोगे, so this will, like, you can replace with these words and the meaning will remain the same. ठीक है. अब हम आते हैं, आई होप आपको दोनों का डिफरेंस और क्या सही मीनिंग्स है वो समझ आ गए होंगे. नाउ द रूल सेज रीक मीन्स टू कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज और हार्म. रीक का मतलब होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज को कॉज कर देना या फिर बहुत ज्यादा हार्म कॉज करना. एंड रैक का खुद ही मतलब होता है एक डैमेज. ठीक है. रैक का खुद ही मतलब क्या होता है, एक डैमेज. ऑलराइट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. सो द रैक ऑफ देयर मैरिज, ये वाला रैक कौन सा है, कौन सा है, the damage of their marriage. Now, torrential rainstorms wreaked havoc yesterday. Havoc again, it means तबाही. ठीक है. So, जो torrential rainstorms थे उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करी चीजें, बहुत तबाही मचाई. Okay. Now, our second mistake which we do,
and this mistake is probably done when you are just writing something. Okay, now whose pronunciation is quite same, but there is a lot of difference in the meaning. You cannot use both the words at the same place, otherwise it will be wrong. Now, what is the thing which makes this thing wrong? Let's have a look at that. So, अगर यहाँ पे लिखा है who's there, who's there, who's there, whose means किसका, तो किसका वहां नहीं, this is wrong. Who is there is the right one. तो जिसमें apostrophe s लगा होता है ना, it is the contraction of the word who is. ठीक है, who is means कौन, ठीक है, who is कौन, and whose means किसका. So that is why. So अब देखते हैं जो whose है that is the contraction of who or who has, and जो whose है that is the belonging to or associated with which person, मतलब किसका, as I told you in Hindi. ठीक है, now examples is whose round is this. ठीक है, ये किसका round है, अच्छा हमने किसका आया, हमने whose यूज कर दिया. Then there is the blogger who's only blogging because he has no one else to turn to. Um, यहाँ पे okay, here they have written who is only blogging. तो ये वाला जो apostrophe s लग के जो होता है इसका मतलब होता है who and is. Got it? Okay. Now let's have a look at the second one. Not second, I guess it is the third one. ठीक है? Averse and adverse. सी एवर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा नापसंद करते हो. ठीक है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज एवर्स. एंड व्हाट इज एडवर्स? एडवर्स मतलब कोई भी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत टॉक्सिक है कोई चीज, दैट इज एडवर्स. एवर्स इज when you are strongly disliking something, that is averse. And adverse is when something is very harmful to you, that is adverse. ठीक है, अब जैसे कि हमारा यहाँ पे सेंटेंस है taxes are having an adverse effect on production. तो टैक्सेस क्या है, डिसलाइक इफेक्ट कर रहे हैं, नहीं एक हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई हमें एडवर्स यूज करना है, एवर्स यूज नहीं करना है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. एडवर्स वेदर कंडीशंस, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल वेदर कंडीशंस है हमारी. यू कैन सी द हार्मफुल क्लाइमेटिक चेंजेस. ही इज एन एवर्स टू स्मोकिंग, तो उसको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, दैट इज ही इज एन एवर्स टू स्मोकिंग. ऑलराइट, सो बोथ वर्ड्स आई होप कि दोनों क्लियर है. एवर्स का मतलब कि कोई भी चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बहुत नापसंद करते हो उस चीज को, स्ट्रांगली डिसलाइक दैट पर्टिकुलर थिंग. एडवर्स मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा अनफेवरेबल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए, बहुत टॉक्सिक है आपके लिए, दैट इज एडवर्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एंड दिस इज आवर लास्ट वन. नो, दिस इज नॉट लास्ट वन, दिस इज द फोर्थ वन. To format. To format. Now, what do you understand by this? See, for example, if I say, um, she's too intelligent to fail. That means कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो फेल हो ही नहीं सकती. अब इतनी बड़ी बात को जो हिंदी में इतना बड़ा, इतना लाइक लेंदी सेंटेंस जा रहा है, you can just complete it in 4 to 5 words in English. She is too intelligent to fail. अब मैं ऐसे बोलूं, she is too intelligent so that she cannot fail. This will be wrong. Why? क्योंकि टू फॉर्मेट होता है जिसके लिए अगर कोई भी चीज हम कंट्रास्टेड चीजें हम बोलना चाहते हैं, अपोजिट चीजें बोलना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मेट, टू टू फॉर्मेट. अब जैसे यहाँ पे लिखा है शी इज टू ऑनेस्ट दैट शी कैन नॉट लाई, देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ सेंटेंस, it will not look good, and this is somewhere incorrect as well. So that is why there is no need to write a sentences in this manner. Instead, you can do what, instead you can do, she is too honest to lie. Okay, she is too honest to lie. Got it? So, don't use so that in the above sentences. It can either be she's too honest, or she's so honest that she cannot lie. John is too weak to walk. तो आपको जो भी सेंटेंसेस है, अगर आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स यूज करने, सो यू कैन जस्ट यूज दिस टू फॉर्मेट. शी इज टू ऑनेस्ट टू लाई, शी इज टू वीक टू walk, she is too intelligent to fail, she is too clever to आगे का सेंटेंस आप खुद बना लेना. आई एम जस्ट नॉट गेटिंग एनी अपोजिट वर्ड की, वो बहुत ज्यादा चालाक है कि क्या की आगे, लाइक यू कैन जस्ट, शी इज टू क्लेवर टू
dash and the remaining sentence you are going to tell me in the comment section below. Okay, next देखते हैं. Okay, before and ago, this is like the most asked question of my students. So they probably ask me that, mom, what is the difference between before and ago? क्योंकि दोनों मतलब इन दोनों वर्ड्स का जो मतलब है लोगों को लगता है कि इट मीन्स पहले. ठीक है, पहले अगर हमें हिंदी में यूज करना है बिफोर यूज कर सकते हैं या फिर हम अगो यूज कर सकते हैं. सो दीज आर नॉट सिनोनिम्स. इन दोनों के मीनिंग सेम नहीं है. ठीक है, और अगर हैं भी तो आप दोनों को एक जगह पे यूज नहीं कर सकते. अब हम बिफोर तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि ये चीज हुई उस चीज के पहले. व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स तब आप बिफोर यूज करते हो. अगो जब आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, 5 मिनट पहले, 5 दिन पहले, 5 साल पहले, 5 महीने पहले, दैट इज फॉर दैट यू यूज अगो. जैसे यहाँ पे लिखा है ही वेंट 5 minutes बिफोर. स्पेसिफिक टाइम दिया है, क्या आएगा? ही वेंट 5 minutes ago. तो बिफोर यूज होता है जो भी प्रेजेंट टाइम से, लाइक प्रेजेंट टाइम की एक सिचुएशन दी होगी और एक अर्लियर टाइम की दी होगी, एट दैट पॉइंट यहाँ पे यूज बिफोर. एंड अगो यूज करते हो जब भी एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन करा गया हो, एट दैट पॉइंट यू यूज अगो. एग्जांपल्स देखो, आई मेट माय वाइफ 20 years ago. एक स्पेसिफिक टाइम दिया, हमने अगो लगा दिया. योर बॉस फोन 5 minutes ago. स्पेसिफिक टाइम दिया, हमने एगो लगा दिया. बिफोर हम कब लगाते हैं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम प्रीसीडिंग अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम. एक चीज याद रखना, बिफोर जब भी आपको यूज करना होगा ना, एक आपको लाइक एक कंपैरिजन दिया होगा कि इस चीज से पहले ये चीज हुई, एट दैट पॉइंट ओनली यू आर गोइंग टू यूज बिफोर. सी, they lived rough for 4 days before they were arrested. ठीक है, अरेस्ट होने से पहले वो बहुत रफली जी रहे थे. सो अगेन दो सिचुएशंस थी, एक तो अरेस्ट होने वाले टाइम की और एक उससे पहले की. तो दैट इज हमने क्या यूज करा? बिफोर यूज करा. एंड वन मोर थिंग, इफ यू नीड फॉर डिटेल्ड वीडियो ऑफ एगो एंड बिफोर, आई हैव ऑलरेडी मेड दैट. I'll share the link in the description box, so you can just check that out as well. Now we are done with not the 5 grammatical errors. We are done with total 60 grammatical errors. And अगर आप बस इसी वीडियो पे डिपेंडेंट हो, आपने 55 से लेके 60 तक देख लिया, there is no use. ठीक है, there is no use. कोई ये 5 तो आ जाएंगे, but what about those 55? And in each video I am completing only the 5 errors so that you can just watch and इतना ज्यादा लेंदी ना हो चीजें. So अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, then you just go and watch them, क्योंकि I am making a series on 100 grammatical errors, जिसमें मैं 100 ऐसे errors कवर करूंगी जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं. Already I'm done with 60. I'll make 40 more. So till then stay tuned and subscribe our channel. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना. Still if you are having any of the doubts in any like इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, या if you want कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, do let me know everything in the comment section below. I'm waiting for your comments and for sure I'll respond to them. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा. अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है. फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत. रियली? यस. तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ का खेल है और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है. जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है. हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ. देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है. अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा. ओह अमेजिंग यार. तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी. एंड दैट टू इन 1 month. ओह माय गॉड. तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ. Yes, of course. फाइनली. So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग. join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर.